Right, we start from where we left in the last lecture. हम a couple of questions कर रहे थे. Last question हमने जो किया था, that was regarding this कि अगर हम area of the sphere बदलते हैं, उससे number of lines पे कोई effect नहीं आता है and overall flux remains the same. ये हमारा last question था. So we are going to begin from the next question over there. So this is the next question for you, just to revise and start. It says electric flux entering and leaving an enclosed surface. तो कोई भी enclosed surface बना लेता है. And amount of electric flux which is entering. So there is some amount of flux which is entering the surface. So this is the entering flux over there, which is supposed to be 5 and something which is supposed to be leaving the surface. So this is leaving the surface, and that is supposed to be 5(2). Right. So what is going to be the charge which is supposed to be present inside? So what should be the amount of the charge inside? What should be equal to the charge inside? Answer please. Amount of the charge which is supposed to be enclosed inside the surface. So answer please. Yes, answer. A part. Phi2 is positive. It is positive reason because the lines are moving outside the surface. Phi1 is negative because lines are entering the surface. And when we are talking about the net flux, so net flux is supposed to be equal to the charge enclosed upon epsilon naught. So the net flux becomes equal to the Phi2 is supposed to be the positive flux, which is leaving the surface. Phi1 is supposed to be the negative flux, which is entering the surface. So hence the amount of the charge enclosed should become as equal to Phi2 minus Phi1 and into epsilon naught. So that should be the amount of the charge which is supposed to be present inside. So that works as what? That should be the D part over there. That's the amount of the charge which is supposed to be present inside the surface. Right, so that reminds us about the flux behavior. That a net flux is integral E dot ds and is equal to Q enclosed upon epsilon. So it depends upon that which number of lines are more. So you'll be able to exactly find out that the amount of the charge is supposed to be positive or negative. So that is quite possible if you are given the values over there. So in the case of values are given, तो हमें nature of the charge भी पता चल जाएगा कि वो positive है कि negative है. So let's look at a question based upon that idea. So hopefully you answered it properly. So this is where the values over there. We have the number of the lines given to us, and so accordingly we need to check on the total charge inside. So please get the answer, solve and get the answer. जितनी लाइन्स एंटर कर रही हैं वो नेगेटिव होंगी, जितनी लाइन्स एग्जिट कर रही हैं वो पॉजिटिव होंगी, उससे नेट नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी, मतलब फ्लक्स आ जाएगा, will be equal to Q upon epsilon naught. From there you will be able to find the amount of the charge over there. D part. B part is negative. So check कर लेते हैं. Inward is -8 into 10 power 3 and outward that is 4 into 10 power 3. That becomes your net flux. So of course negative आएगा, and that's Q enclosed upon epsilon naught. So epsilon naught as it is given. So we are getting this value accordingly. So the value for the Q enclosed, that is equal to -4 into 10 power 3 and into epsilon naught. So which explains to us that the nature of the charge over there is supposed to be negative. So that is very well working as your D part. पूरी epsilon naught की value डाल के exact we can get the value in the nano coulombs also, which means if we are going to get in the value, so that should be 8.85 into 10 power -12. So that is going to come in nano coulomb, and that is -4520, 4832 to 34. So 35.4 nano coulomb should be the value for the net negative charge which is enclosed within the surface.
राइट. सो जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में कि हम लाइंस के थ्रू अंदर सरफेस के कितना चार्ज है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर है, और नेचर ऑफ द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं, पता चला सकते हैं एग्जैक्टली. राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट. सो इट सेज in a region the intensity of electric field is 5 Newton per coulomb. 40 lines of electric forces are crossing per square meter. The number of the lines crossing per square meter where the intensity of the electric field is 10 will be. So what's the answer, please? What's the answer, please? 80. Correct, because we have the number of the lines as equal to the electric field density. That means that is equal to as E upon the area. Right? अगर हम लेते हैं for the case of the positive charge तो ये particular area कितना हो जाएगा 4 pi r square. अगर हम एक line charge के थ्रू लेते हैं तो एरिया कितना हो जाएगा 2 pi r into L. फिलहाल it is simply given as per square meter. That means that we can easily check up if it is per square meter. So this area is constant. So n is directly proportional to the field. So field की strength हमने क्या कर दी है? Double कर दी है. पहले कितनी थी 5 and now it is supposed to be 10. So in the same region we will have the more number of lines to be sketched. Idea पहले से ही हमने electric field lines पे बनाया हुआ था कि अगर इस तरीके से lines हैं और हम उतने ही region में अगर more number of lines को sketch करते हैं. So what does it represent? It represents a stronger field. ये idea हमने पहले ही बनाया हुआ. So it is based upon that idea. यहाँ पे जो field होगी वो stronger है. Let's say E1 and this is E2. So it is explaining कि E2 की value E1 से ज़्यादा है. So the same over here. That's N2 upon 40 is supposed to be 10 upon 5. So the N2 is supposed to be 80. The visual is also clear. What does the question exactly means over there? And now this particular question does not involve any charge. So as we said, there will be the multiple question जिसमें charge और field involve होंगे या field और lines involve होंगे या lines और charge involve होंगे. So तीन ideas होंगे, flux, lines and the charge. That is exactly what the questionnaire are going to be manifolding in the session. Right. So let's move on to the next one. Right. So read the question properly and try to answer. So what is given in the question is कि हमारे पास एक rod है of length L, मतलब उसके ऊपर एक line charge है और charge Q है, length L पे distributed है, and this rod is moving with a constant speed, and then it enters a imaginary cube over there. तब real cube मान लो उसको, तो उसमें वो enter out कर रही है, और cube की जो length है वो L/2 given है. So variation of the flux passing through the cube with respect to the time. So please try to find out the variation of the flux as a rod passes through the cube. जैसे जैसे rod अंदर को move करेगी. Yes. Answer please. C part. C part. How come C part? The flux due to charge enclosed is 0. So the time when the rod fully is inside the tube. Initially there is nothing. Initially there is nothing. Okay. Then after that, the rod moves towards the cube. So then what happens? As the rod enters this particular cube, so what happens? There will be some part of it which will be enclosed. So let's say that is X. Right, so the what is the value for the charge? dq is lambda into dx. अब lambda constant है, तो x length पे उतना charge आ जाएगा. So what is the value for that particular charge? तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं. That is total charge is supposed to be q
over the length L. So जितना charge enclosed आ रहा है, that is over the length of x. So the Q enclosed is Q by L into x. That's the amount of the charge. And then we are talking about a flux. So flux will be Q enclosed by epsilon naught. So if you place in the value for the Q enclosed, that is Qx by L. So that is Qx by L upon epsilon naught. Right? Which means the flux over there is going to vary with x directly. So linear graph है. So linear graph में मतलब flux constant तो नहीं होगा. तो ये तो नहीं हो पाएगा. So it is increasing also. So the flux is going to increase. So दोनों graph possible है that the flux is increasing initially और उसके बाद क्या होगा? Then as a rod enters, so as a rod is going to enter, तो rod की जो complete length है वो L given है, लेकिन जो क्यूब की लेंथ है वो तो L by 2 है. So there is going to be a position here where as the rod will be passing through, तो जो charge enclosed है that will come as Q. X की वैल्यू कितनी होगी? ये L by 2 है. So that is Q into L by 2 जितना enclosed होगा and divided by L epsilon naught. So that L and L gets cancelled and that works as Q by 2 epsilon naught. At any particular instant, the maximum amount of charge which can be present is Q by 2 epsilon naught. मतलब अगर ये rod इस पोजीशन पर है या ये rod ऐसी पोजीशन पे थी, मतलब इसका L by 2 अंदर था और L by 2 बाहर था. So still the maximum amount of flux remains how much? Q by 2 epsilon naught. और फिर ये rod exit भी करेगी. As it start exiting, so till now, तो इस पे फ्लक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि जितना enclosed है वो तो L by 2 ही है. So for some duration, for some distance, the flux is going to remain constant. तो हमें चेक करना था कि maximum flux कितना है, तो ये गलत है. The value for the maximum flux which is involved is supposed to be Q by 2 epsilon naught. So hence the A part becomes absolutely correct because we are getting the maximum flux which can be enclosed, that is coming as Q by 2 epsilon naught. क्योंकि maximum charge जो अंदर आ सकता है वो कितना आ सकता है? Q by 2 आ सकता है क्योंकि length जो है क्यूब की वो सिर्फ L by 2 है. And then as this exits, so धीरे धीरे flux कम होने लगेगा. So that is exactly what this graph is telling. कि धीरे धीरे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? कम हो जाएगी और जब पूरी रॉड बाहर निकल जाएगी तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 आ जाएगी. So it explains the A graph perfectly over here. I hope it is clear to everyone. समझ में आ गया सभी को? डन है? क्लियर है? सब जाग रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मुझे लगा सो रहे हैं सारे. Okay. So let me skip on to the next question. All right. So easier one over there. हमारे पास 3 point charges हैं. 2q है, -q है, 3q है. 2 charges 2q and -q inside the surface है. What is the flux due to the configuration through the surface S? So the electric field through the surface S is due to enclosed charges or B part due to all the charges nearby. Answer please. दोनों में से क्या सही है? Is it due to enclosed charges or due to all the charges nearby? All charges. Is it due to all the charges nearby or due to the enclosed charge? So all charges. Charges nearby. It is because of the enclosed charges only. That is the electric flux, not the field. That's the electric flux. If it is supposed to be the electric field, in that case, it is absolutely correct. That is because of due to all the charges nearby. तो फिलहाल the question है सिर्फ flux पूछा है. So flux तो वही depend करेगा कितनी lines बाहर आ रही है. So the flux is going to be equal to due to the net charge और net charge सिर्फ अंदर दिखना होगा. So the net flux is supposed to be 2q plus of -q and upon epsilon naught.
Hence, the net flux is supposed to be simply Q by epsilon. Ignoring the charges which are supposed to be kept outside. क्योंकि वो हम देख चुके हैं कि उससे जो जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस एग्जिट करेंगी. So hence it is not going to contribute to the flux. So इसलिए the flux is always because of the enclosed charges only. Right? So let's move to the next one. Right, so there are three charges Q1, Q2, Q3 given to us, have been placed in the four surfaces S1, S2, S3, S4, and the flux emitted from the surface S2 in this is supposed to be equal. So that is pretty clear कि अगर हम S1 के through check करेंगे, so that is simply equal to Q1 upon epsilon naught. अगर हम S2 के through check करेंगे, so that will be Q2 plus Q3 upon epsilon naught. Then S3 के through check करें, so that is coming as 0. और अगर हम surface 4 के through check करें, so that is Q1 plus Q2 plus Q3 upon epsilon naught. These are the values for the flux through the all the surfaces. और हमसे पूछा किसकी वजह से है from the surface S2, वो आप evaluate करके दे सकते हो. Give me the value for the flux through the S2 surface. S2 surface. Q1 से तो मतलब ही नहीं है, Q2 और Q3 चेक करना है. So Q2 is 2 into 10 power minus 6 and Q3 is minus 3 into 10 power minus 6 and upon epsilon naught. And I wish so I can also write चाहो तो, नहीं तो जैसे है वैल्यू वैसे. Yes, answer please. Say 11.29 into 10 power 6. Yes, minus. So minus 10 power 6 upon 8.85. ये हुआ ना? So should be 10 upon 8.85 into 10 power 5. So 10 upon 8.85 कितना हो? 1 point how much? 1.29 या 1.129? कितनी वैल्यू बोली कुणाल? 1.129 या 1.29? 1.129. 1.129. So that should be 1.129 into 10 power 5. That should be the flux. Right? Units पहले क्या बना? That's over there. Newton meter square per coulomb. Right, so different surfaces के through calculate कर सकते हैं. So that is easily done over there. That what will be the charges. अच्छा, इसके अंदर एक twist on question है. और वो twist on question कैसे है? Suppose हमारे पास ये surface है. This is the surface, and we have a charge 2 microcoulomb present over here like this. And then we have some surfaces over there. So this is a surface S1 and this is a surface S2 and there is a surface S3 and there is a surface S4. So can you give me the flux through the surface 1, 2, 3 and 4, and you need to explain whether it is positive, negative or 0. This you need to explain. So can you please answer? The four surfaces are mentioned over there, S1, S2, S3 and S4.
You just need to explain to us that the flux is going to be positive, negative, or zero through the surfaces S1, S2, S3, S4. सर पहले तीन तो जीरो हो जाएंगे. Yes, sir. लास्ट वाला पॉजिटिव. सर लास्ट वाला जो सरफेस है हमने तो बॉडी के बाहर भी इमेजिन कर लिया है. ये क्या चक्कर है? S1 please. S1 पे positive, negative, or zero? Zero. Zero. Anyone with different answer? So zero. Anyone with different answer? Anyone with a different answer? So ये positive charge है. It is a positive charge. और जब हम इस object के पास में लेकर आएंगे, so there is going to be an induction over there. What is going to happen? There is going to be an induction over there. और nearby surface पर induction कैसे होती है? Opposite nature of the charge. और far off पे कैसे होती है? That is supposed to be the positive nature of the charge. इसका मतलब there is going to be the redistribution of the charges when this particular charge is going to be present nearby. And so the flux through the surface S1, what does it work out to be? That works out to be negative in nature. So it is negative for the surface number 1. If we are checking for the surface number 2, you can see that it is working out to be positive. And when we are checking through the surface number S3, so agar ye minus Q induced hai, so it is going to be plus Q induced. And through the S3, so we will have the net Q as equal to minus Q induced and plus Q induced. So that works as 0. So therefore the flux through the third surface, that works as 0. Right? And finally, the surface S4. So ye to 0 ho gaya, ye reh gaya. So that is a positive charge. So the flux is going to be positive over there. Like that. So hopefully we have understood the question. Right? Clear hai? Understood hai? समझ में आई है? अब ये ऐसा भी हो सकता था कि हमें इस तरीके का ऑब्जेक्ट गिवन होता और ये कंडक्टिंग गिवन होता और यहां पे हमें चार्ज गिवन होता एज द क्यू. Okay, and then we could have been provided with a surface like this. That is a surface S1 and provided with another surface over there, and that is supposed to be S2, and told us to calculate a flux through the first surface and a flux through the second surface. So then we would have been exactly able to comment a flux. इसमें Q है और क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर पे कितना आएगा? माइनस क्यू आएगा. बाय द फॉर्मूला दैट क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, और के की के इंफिनिटी हो जाएगा तो क्यू इंड्यूस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्यू के बराबर आएगी. अभी तो ये बोला ही नहीं था कि ये कंडक्टर है, तो हो सकता था कोई भी डाइलेक्ट्रिक होता, और अगर कंडक्टर होता भी तो फिर ये नहीं बताया ना कि कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है. But it's pretty much clear. So the value for the flux 1 will be minus Q upon epsilon naught, and value for the flux 2 that becomes plus of Q upon epsilon naught will be the exact values for the flux over there because of the induced charges over there. So do consider the induction effects also whenever we are given a question regarding a surface over there, object, and the nearby charges to be present over there. Right. So let's move on to the next. Hopefully we have noted this down. So moving in. Okay, so that's some kind of a question. Previous problem, and a lot of charges are present over there. So लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है और आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस. सो प्लीज ट्राई आउट, टेक योर टाइम एंड ट्राई आउट. हमें बताया गया कि एक डिस्क है जिसका रेडियस a/4 है and having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in the xy plane with a center at -a/2.
So the center is here of the disk, and that is at minus of a by 2, comma 0, comma 0. And a rod of length A carrying a uniformly distributed charge. So this is a rod of length A and carrying a uniformly distributed charge 8 coulomb. So this is carrying a charge of 8 coulomb over there. While its cubic charge that was 6 coulomb. And the radius for this was given as A by 4. A by 4. And then there are supposed to be जो rod रखी हुई है वो A by 4 से 5A by 4 पे रखी हुई है. And 2-point charges, so the cube 2-point charges minus 7 are placed at A by 4 minus A by 4 comma 0. So A by 4 minus A by 4 मतलब कौन सा वाला हुआ, ये वाला या ये वाला? तो X पॉजिटिव है और Y नेगेटिव है, तो ये वाला चार्ज हो. And this is given as minus 7 coulomb. And we have minus 3A by 4 and 3A by 4. So X नेगेटिव है, Y पॉजिटिव है और तो ये वाला चार्ज हो. Right? So this is your 3 coulomb. And the side length of the tube is supposed to be A by 2. But that's given over there. So please answer. What are we supposed to do? We are going to handle the net charge over there. So net charge check कर लो, जो कि enclosed है, ये वाला तो होगा नहीं, ये तो बाहर ही है. तो बाकी जितने enclosed हैं वो check upon कर लो. I think वहां से आपका आंसर clear out हो जाएगा. Answer please. अब तो डन है, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया. आंसर ये इस पे कितना चार्ज इंक्लोज है? सारा तो इंक्लोज है नहीं, तो 8 कूलम में से कितना चार्ज इंक्लोज हुआ? 8 कूलम में से कितना चार्ज इंक्लोज हुआ? 8 by 6. ये कितनी लेंथ इनसाइड है? How much is the length which is inside? A by 4. A by 4. A by 4 मतलब 1/4 length is inside. क्योंकि पूरी लेंथ तो A के बराबर ही है. 5A by 4 में से A by 4 माइनस करेंगे, so the total length is supposed to be A. और ये वाला डिस्टेंस A by 4 है और ये A by 2 पर है, मतलब A by 4 length is inside. तो अगर A by 4 length inside है, इसका मतलब 1/4 length inside. और अगर 1/4 लेंथ इनसाइड है तो 1/4 ऑफ 8 कूलम कितना होगा? 2 कूलम. इसका मतलब इस सरफेस के अंदर जो रॉड, पार्ट ऑफ द रॉड रादर is supposed to be enclosed. This is carrying only this much charge and that charge is supposed to be 2 coulomb only. बाकी सारा बाहर है क्योंकि 3/4 of the rod is supposed to be outside. ये तो सीधा सीधा -7 कूलम इनसाइड है. और इस डिस्क का कितना चार्ज इनसाइड है? 3 coulomb. 3 coulomb, because वो तो क्लियर है कि हाफ ऑफ द डिस्क इज इनसाइड and total charge is 6 coulomb and therefore the amount of the charge which is over there that is supposed to be 3 coulomb. So that's it. I think the question stands over. So the net amount of the charge enclosed that becomes equal to 3 plus 2 and -7. So that's 5 minus 7, that's -2 coulomb. So the value for the flux through the surface, that should be equal to Q enclosed upon epsilon naught. So that's equal to -2 coulomb upon epsilon naught. This is the value. बाकी epsilon naught की value place on कर लो and you can happily find out the answer. That will be the value for the flux over there. So nicely in previous problem है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स में फंसा रखा था कि कितना चार्ज अंदर है. Conceptually the question is not so strong. It is just to check on the
नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज विच इज सपोज्ड टू बी एनक्लोज्ड। वो आपको थोड़ा ध्यान से देख के चेक करना है। सो नॉट अ वेरी हाई कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन है कि मतलब कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से कितना चार्ज इनसाइड है। राइट, सो दैट्स द आंसर। जो ऑप्शन आई थी तो सॉल्विंग की नहीं आई थी, ऐसे ही था, -2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट +2 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके की ऑप्शंस थी। सो सॉल्विंग के लिए नहीं था, बस ये इंटरप्रेट करने के लिए था। राइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So that's a question. Try out the question, please. There is a cone of the base radius r and height h located in a uniform field parallel to the base. So this is a cone, and radius of this is supposed to be given as r. So r is the radius here, and h is the height over there, and there is an electric field which is parallel to the base. So the electric field is supposed to be parallel to the base. That means it is going to be like this. So that's the field. Like that. Right, and it's a uniform field mentioned very. So that's E over there. So we need to find a flux entering the cone. Net flux to 0. Clear है, कल देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मतलब जितनी लाइन से एंटर करी उतनी एग्जिट करी, तो नेट फ्लक्स टू 0 वो पूछा ही नहीं है। पूछा है कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो टेक्निकली नेगेटिव होना चाहिए, पर कोई ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है, तो वो सिर्फ वैल्यू के ऊपर हिट कर रहा है। So tell me the value, please. Value of the flux, please. Yes, please answer the value of the flux. We did a question in the last session like this. याद ही होगा, like this. That was a question which we did. Right, so जो lines थी वो फिर से इसी तरीके से आ रही थी यहाँ पे in this mannerism, और ये जो surface है वो S1 था और ये surface let's say S2 है, तो ये S2 पे flux कैसे निकाला था? How did we exactly calculate a flux across this? So उसको कंपोनेंट ले लिया था एरिया, उसको प्रोजेक्ट कर दिया था हमने। क्या करा था? प्रोजेक्ट कर दिया था फील्ड के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसका हमने एरिया इधर ले लिया था जो कि हमें s cos थीटा मिल गया था, एंड देन दैट s cos थीटा ओवर देयर जो कि बेसिकली s1 के ही बराबर हो गया था, एंड सो द वैल्यू फॉर द फ्लक्स वाज इन मैग्नीट्यूड सिंपली एज E into S1। ये हमारा रिजल्ट आ गया था। तो समथिंग लाइक दैट है। अगर हमें टॉर्च लेके उसको दीवार पे प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा? वैसे तो हमें कौन दिखेगा, लेकिन दीवार के ऊपर क्या दिखेगा? व्हाट विल बी इंसिडेंट ऑन द वॉल? इफ वी हैव अ टॉर्च बीम, एंड सो द बीम will look like a cone to us, but when it is intercepted on a wall, so then it is going to look like what? Planar. That means it is going to look like what? A circle on the wall. Otherwise it is supposed to be a cone, but over here it is looking like what? A circular area over there. So it is a circular area over there in that particular plane. So exactly the same mannerism। अब हम easily बता पाएंगे कि इसमें फ्लक्स कितना है। तो यहाँ पे भी अगर हम सेम आइडिया लगा लें तो इन लाइंस के परपेंडिकुलर अगर हम चेक करें, so we will have this area over there, and what is that area? That is supposed to be a triangular area perpendicular to the field lines, and that will be perpendicular to the field lines, right? और अगर हम इस व्यू से देख लेते हैं इसको from this view, so this will look like a complete triangle, and you will find the lines entering inside. So you can sketch the field lines over there as cross. That means the field lines are perpendicular to that particular surface. This surface, right? So they will be the perpendicular to the surface. So बिल्कुल easy हो गया। तो अब आपको इसका area check करना पड़ेगा। And what is the area for it? That is too simple. The height is given as h, and this base becomes how much? That becomes 2r.
So the area of this particular triangle that becomes half into base into height. So base कितना है 2r और height कितनी है h. So that becomes a complete area and multiplied by the field. So that is going to give us the value for the flux. So that 2 and 2 gets cancelled and that becomes E into R into H as a result. So that works about as an option A as a result. Right? So what have we done is कि हमने जो field lines है उसके perpendicular area को project करा है. So what if you get a question on the same note that we are having a cylinder like this and we have a field line like this. So can you try out? This height is h and the radius for this is r. So can you find out the flux entering or leaving this particular cylinder? Answer please for this. ERH. How much? Same. Recheck. Sir, 2 ERH. So 2 ERH. 2 ERH आएगा. 2 ERH because we are going to check once again the area which is perpendicular to the field line. So that is going to be a rectangular area over there. So if we are going to check that area, so this is going to be the area. That's in that particular plane held perpendicular, and for that this side is twice of r and this side is supposed to be h. So the area of that particular plane becomes 2RH and hence the flux that becomes E into 2RH should be the result. Right, and if this particular cylinder was turned 90 degree घुमा देते हैं और फिर उसको place कर देते हैं like this, तो the simple question है. In that case the question is too simple. कि lines ऐसे enter कर रही हैं, so the बहुत ही simple है. In that case, कौन सा area है? ये वाला area है. So the amount of the flux that is simply E into pi r square. So this is how the orientation of the cylinder is going to generate the result over there. So hopefully this idea हमने plane projection का idea introduce करा था. Question किस तरीके से उसके आते हैं ये आपने देख लिया और बहुत ही आसान question है, बिल्कुल difficult नहीं है. ऐसा paraboloid का question भी आया हुआ है. So मतलब किसी भी तरीके का question आ सकता है. आपने देखना होगा कि उसका जो एरिया है वो प्लेन पे कितना आ रहा है जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर है एंड यू विल बी एबल टू राइट अप द आंसर प्रॉपर्ली एंड इजीली. लेट्स मूव नेक्स्ट. राइट, सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन. सो आगे बढ़ते हैं. दिस वन, ट्राई दिस आउट. गलती मत करना, ट्राई इट आउट. सो फील्ड गिवन है E नॉट x कैप है. E नॉट x कैप है, इसका मतलब x डायरेक्शन में फील्ड है और कांस्टेंट फील्ड मेंशन्ड है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है शेडेड एरिया. इस एरिया के थ्रू आपको फ्लक्स इवैल्यूएट करना है. ट्राई प्लीज. Try. जैसे हमने अभी सिलेंडर की ओरिएंटेशन को चेंज करके देखा तो जो एरिया है वो चेंज हो गए. सो अगर हम जैसे सिलेंडर को इंक्लाइन कर देते हैं किसी एंगल पे तो सेम तरीके का क्वेश्चन हो गया कि बेसिकली हमने परपेंडिकुलर या टेंजेंशियल नहीं रख के किसी एंगल पे रखा होगा. सो वी नीड टू चेक ऑन द फ्लक्स थ्रू दिस. तो जनरल फॉर्मूला पर फ्लक्स वैसे ही पता होता है, दैट इज इक्वल टू E D part. Which part? D part. How come? Please explain. वो एरिया की प्रोजेक्शन से. एरिया से प्रोजेक्शन से. ओके. एरिया कितना है और एंगल कितना है? दो ही चीजें चाहिए, s और थीटा. So what is s and what is theta? What is s? Yes. A square. S is a square. And what about theta? 45 degree. Theta is 45. Does everyone agree with this?
that S is a square. Check it. Is S a square? Is it mentioned somewhere it is a square? I don't feel so. It's mentioned somewhere it is a square. So what do you feel? What is this side length? ये तो clear है. 0 0 0 0 a 0. तो ये वाली side length तो मुझे clear है a है. What is this side length? What is this side length? वही बताओ. What is this side length? 2a square. 2a. Root 2a है. रूट 2a क्योंकि ये a और a x पे और z पे, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है वो किससे आएगी? पाइथागोरस से आएगी. एंड दैट लेंथ डिस्टेंस फार्मूला पता नहीं है. तो डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? a माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर एंड प्लस a माइनस 0 स्क्वायर. सो कितना आता? रूट 2a. तो मतलब ये कितना है? दैट साइड इज इक्वल टू हाउ मच? रूट 2a. So what is the area over there? The area over there becomes equal to root 2a into a. So that's equal to root 2a square. और theta तो wisely judged upon है. That theta is supposed to be 45 degree. So बिल्कुल clear है उसके बाद तो. So if the theta is supposed to be 45 degree, so the value for the flux that becomes E, and S value is how much? Root 2 into a square, and cos 45 that becomes 1 by root 2. Root 2 cancel. We get this as E into a square as a result. So that works upon as a C point. So बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है एंगल को, ओरिएंटेशन को. That's it. तो इसलिए वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको दिखाएं ताकि कहीं भी ना हो गलती, कहीं भी ना हो हमसे, और ध्यान से क्वेश्चंस को वॉच अप करके देख लें. तो पहले तो देखा कि हमने 3D फिगर को 2D में कैसे कन्वर्ट करता है, और जब वो 2D फिगर बन जाती है तो फिर उसका भी ओरिएंटेशन आपने ध्यान से देखना होता है. So this is how I have managed out the questions for you. So rightfully understood है, done है. तो हम आगे बढ़ेंगे इस concept में. Right. So let's read out a question there where it says a charge Q is distributed uniformly on a ring of radius r, and a sphere of equal radius r is constructed with the center at the periphery of the ring. Find the flux of the field through the surface. So please try the question. Good question. Please try the question. It says there is a charge Q uniformly distributed on a ring. So let's just have this as a ring, and the charge Q is uniformly distributed. तो इस तरीके से charge distribute होगा. Uniform distribution. Complete uniform distribution. Done. Okay, and there is a sphere of equal radius constructed with a center at the periphery of the ring. So this is a sphere with the center at the periphery. So that's the center of the sphere. That's the center of the ring. So that's the sphere. So where the question is to find the flux through the sphere. Can you please find it? Find the flux through the sphere. It's kind of like हम बोल सकते हैं कि ट्रिक क्वेश्चन हुआ, नहीं तो एप्लीकेटिव क्वेश्चन हुआ. ट्रिक तो नहीं हुई, मतलब बेसिकली एप्लीकेटिव हुआ. So please try to answer. Please try to answer. Options हो क्या, उससे मतलब कुछ दिमाग चलेगा. Q by epsilon naught, Q by 2 epsilon naught, Q by 3 epsilon naught, Q by 6 epsilon naught. E part also none of these. So options भी आ गया आपके सामने. Now answer. जैसे Q का क्वेश्चन तो फटाफट कर लिया था हमने, है ना? सिमेट्रिकल लग रहा था तो हमने Q upon 2 epsilon. Q upon 2 epsilon. Sure about कि आधा चार्ज अंदर? सही आधा ही लग रहा है क्योंकि सेंटर पेरिफेरी भी. आधे तो बिल्कुल नहीं लग रहे. आधे तो लगते हैं जब ऐसे होता,
जैसा अभी क्वेश्चन किया था हमने, अभी डिस्क का क्वेश्चन किया था पीछे, आधे डिस्क पूरी क्यूबिकल सरफेस के अंदर आ रही थी तो आधा चार्ज ले लिया था हमने। या फिर क्यूब का क्वेश्चन किया था जिसमें रॉड को मूव कराया, आधा तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। लग रहा है किसी को? लग रहा है आधा? सर डी पार्ट। डी पार्ट Q/6 वो कैसे है? सर 1/3 आर्क अंदर है। 1/3 अंदर है, वो कैसे पता चला? ये सारुषि वो कैसे पता चला कि 1/3 अंदर है? ज्योमेट्री से। कैसे? एनलाइटन कैसे? क्या ज्योमेट्री? सर पहले CR और CS को कनेक्ट कर लेते हैं बढ़िया। और फिर CR को एक कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब ये वाला। हाँ जी, दूसरे वाले से भी कर ही लेते हैं, और इस वाले से भी करना है। हाँ जी, वो एक फिर इसको वो भी कर लेते हैं। हाँ जी, फिर इसको करने से पता चला कि दोनों का रेडियस सेम है। क्वेश्चन ये बोला हुआ इक्वल रेडियस आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी रेडियस है, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है और रेडियस सबके बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा, तो नीचे वाला भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब जो सेंटर पे एंगल अपने को दिख रहा है ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना बन गया? दैट बिकम्स इक्वल टू 120 डिग्री। और ये पूरा एंगल है कितना? 360 डिग्री। तो इसका मतलब कितना चार्ज है वो डिग्रीज में डिवाइडेड है, मतलब 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पे कितना चार्ज है? Q। और कितना चार्ज जो हमें चाहिए वो तो सिर्फ इतना वाला ही है, दिस मच अमाउंट ऑफ द चार्ज व्हिच इज गोइंग टू बी देयर। तो ये जितना चार्ज एनक्लोज चाहिए, तो ये तो सारा इतने ही एंगल पर आ रहा है 120 डिग्रीज पर। So hence that is our Q enclosed. So that is working as how much? 1/3. So the Q enclosed is equal to how much? Q/3. So what is the answer then? Is it C part or D part? That works. C part, because we have the net flux as the charge enclosed upon epsilon naught, and the charge enclosed becomes Q/3, and so the value works as Q/3 epsilon naught. Alexa, stop. Right, so that is Q/3 epsilon naught as a result. Right, so hopefully nicely done question और easy question है, but interpretation की बात है कि जैसे हमने देखा तो हमने सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है, हमने 3 क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन हमने रॉड वाला करा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन था। सेकंड हमने जो क्यूबिकल सरफेस था जिसके अंदर काफी सारे चार्जेस है, डिस्क लाइन ऑफ चार्ज, वो क्वेश्चन किया था। थर्ड इज दिस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ चार्ज, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, दैट इज अबाउट द चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन और सो नो डिफिकल्टी इन दैट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके से है, वी हैव अ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, टाइम चार्ज नहीं, लाइन चार्ज है, and having a uniform charge per unit length lambda, and it lies at a distance d from the point O से perpendicular distance d है. Find a total flux through the surface of the sphere of the radius r centered at O resulting from this line charge. Please can you answer? तीन parts में, d greater than r, B D less than R, C D equal to 0 in 3 parts. So the sphere और उसके थ्रू फ्लक्स चेक ऑन करें थ्रू दैट स्पीड. So पहला D greater than R. If the D is more than R means D is more than R मतलब लाइन अंदर है बाहर है, लाइन बाहर है, तो चार्ज एनक्लोज ही नहीं हो. There is no charge enclosed. If there is no charge enclosed, so the flux is supposed to be 0. So the flux over there is supposed to be equal to 0. Simple. क्योंकि चार्ज ही सारा बाहर है. So the question is going to be on the B and C part. So please try to get the answer for the B part. When it is inside. Sir, 2k lambda by d pi r square.
दोबारा लिख देगा 2k लैम्डा लैम्डा बाय डी पाई आर स्क्वायर बाय डी पाई आर आर स्क्वायर। फील्ड नहीं बोली है, फ्लक्स बोला है। फील्ड बाय फील्ड इनटू एरिया, सॉरी फील्ड इनटू एरिया करेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, इनटू पाई आर स्क्वायर होगा। अभी क्वेश्चन फ्लक्स के कैसे निकालने हैं हमें, फील्ड के थ्रू तो डिफिकल्ट होते हैं, फ्लक्स के क्वेश्चन कैसे निकालने हैं चार्ज से। सो ये चेक करें कि चार्ज एंक्लोज अंदर कितना है। चेक द चार्ज व्हिच इज एंक्लोज इनसाइड, चेक प्लीज द चार्ज इनसाइड। तो उसके लिए डायग्राम स्केच करना पड़ेगा एक बार। सर वो तो कम ज्यादा नहीं होगा? हाँ बोल बोल। सर अगर हमने ज्यादा पास रख लिया सेंटर के तो वो ज्यादा हो जाएगा, अगर दूर रख लिया तो कम हो जाएगा। ये आवाज थोड़ी सी मतलब थोड़ी लाउड बोल यार। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने वो उसने कहा है सिर्फ छोटा है, हमें नहीं पता ना सर कितना छोटा है। कौन कितना छोटा है? सर डी। ये तो पता है कि डी है, ये तो पता है डी है, देख देख सही है। हाँ जी सर। अब पता नहीं कितना छोटा है कितना बड़ा है, छोड़ देता है कितना बड़ा कितना छोटा है, पर ये तो पता चल गया कि कितना चार्ज एंक्लोज चाहिए, ये वाला चाहिए, बाकी नहीं चाहिए हमें। बाकी यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकालो, चाहिए नहीं हमें। सही कह रहा हूँ ना, राइट? ना ये वाला चाहिए ना ये वाला चाहिए, सिर्फ इतना ही एंक्लोज चार्ज। अब ये लाइन लेंथ निकाल सकते, कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते। व्हाट इज द कॉर्ड लेंथ ऑफ दिस? यस सर, कितनी है? 2 into root r square minus d square। इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये रेडियस है, तो ये लेंथ आ जाएगी पाइथागोरस से, दैट इज रूट ऑफ r square minus of d square, and same thing happens here, ये लेंथ भी सेम है, दैट इज रूट ऑफ r square minus of d square, तो ये कंप्लीट लेंथ आ गई, दैट इज ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ r square minus of d square, वो लाइन ऑफ लेंथ है। And so I can use lambda as equal to q enclosed upon that line of length, वो मुझे मिल गई है, so मुझे q enclosed की वैल्यू आ गई है, so that's equal to lambda into this complete length, which is 2 into root of r square minus of d square, and so the value for the flux becomes q enclosed upon epsilon naught, so that's 2 lambda root of r square minus d square upon epsilon naught as a result. This is the value for the flux over there. Clear है, समझ में आई है, right? So this is what a Gauss law basically helps us in finding out the question. In fact, no, it is flux related with the Gauss law. जैसे ये question solve हो पा रहा है, नहीं तो Gauss law जो है उससे question difficult था, because that was E dot ds equal to q enclosed by epsilon naught। हमारा दिमाग इस पे चलता, वो difficult feature है, तो हमने सीधा क्या यूज करा कि ये फ्लक्स के बराबर है, और फ्लक्स यहां से निकालने की जगह हम यहां से इवैल्यूएट कर रहे हैं, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द इजियर वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द फ्लक्स। सो जितने क्वेश्चंस हमने पीछे देख रहे हैं जो चार्ज वाले हैं वो उस पे बेस है, ये भी यूज करते हैं। कब यूज कर रहे थे? जब फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जब फील्ड यूनिफॉर्म आ रही थी तो हम उस क्वेश्चन पे जा रहे थे, और जब अदरवाइज चार्ज बेस कांस्टेंट पे मूव ऑन कर रहे हैं, right? What is the maximum flux which is possible through the sphere? What is the maximum flux possible through the sphere? 2r When d equal to 0? D equal to Yes 0. sir, d That's the 0। C part, कि D को 0 कर देंगे तो ये जो लाइन है वो पूरी यहाँ से पास करेगी, तो इसका मतलब डायमीटर पे चार्ज आ जाएगा, और अगर डायमीटर पे चार्ज आ जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज इंक्लोज होगा, तो इसमें D equal to 0 प्लेस कर देंगे तो सीधा हमें फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है, and that will be in fact the maximum flux and will be 2 lambda r upon epsilon naught। So question की लैंग्वेज सीधा ये भी हो सकती थी that calculate a maximum flux through the sphere, so that is a maximum flux through the sphere that is coming as 2 lambda r by epsilon naught। So इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद ही दिमाग की बत्ती खुलती है और हमें पता चलता है कि हाँ भाई किस क्वेश्चन में किस तरीके से अटेम्प्ट करी जानी चाहिए। एक आधा 2-3 क्वेश्चन करें तो फिर वो दिमाग की बत्ती खुलती नहीं है, फिर हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाके कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हो जाएंगी, पर शायद अब नहीं होंगी, और देखते हैं कि नहीं होंगी कि होंगी,
तो उसके लिए क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको. So this is a cube over there. Cuboid ले लेते हैं rather. Right. So let's take a cuboid over there. And let's say this side length is A and this is B and this is C. And we have C greater than B greater than A. This is given over there, right? And we need to calculate the maximum flux through the cube if there is an infinite line of charge which is supposed to be adjusted within this particular cuboid. So we need to find the maximum flux through the cuboid. If this is a line charge length lambda, has to be arranged in some mannerism. अंदर कैसे भी arrange करो ताकि आपको maximum flux मिले. Can you please get answer? डायगोनल के लॉन्ग कर लेंगे. कौन सा डायगोनल? सर जो दो ऑपोजिट कॉर्नर्स को मतलब कि बॉडी डायगोनल. सो क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल. So we can place it exactly correctly along the body diagonal. So if I am going to place it like this along the body diagonal, and so it will be the largest length which will be possible over there. And what will be that length? What will be that length? Under root of a square plus b square plus c square. Right. So that is under root a square plus b square plus c square. Will it then matter कि कौन सी साइड लंबी है कौन सी छोटी है? नहीं सर. ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा. राइट. तो वाला ऑप्शन ऐसी हो सकती है that this is the possible answer if c is more than b more than है. एक और हो सकता है if c is less than b less than है. और एक हो सकता है it is independent of the dimensions of the size. Right. So independent है and the charge which is enclosed lambda से आ जाएगा. So lambda is equal to q enclosed upon l and l becomes root of a square plus b square plus c square. So therefore we get a q enclosed and the flux should be equal to q enclosed by epsilon naught. So that is lambda root of a square plus b square plus c square upon epsilon naught as my result. Cube होता तो वैसे सारा तो तीनों साइड आपकी l हो जाती. So root 3l आ जाता. Root 3 into l. So answer would have been root 3l lambda by epsilon naught. If the line charge should be placed in either xy, yz or zx plane, so then find the value for the maximum flux. You can find it out. अब लाइन चार्ज की रिस्ट्रिक्शन है कि आपको डायगोनल पे नहीं रख सकते हैं इस पे. तो वो कह रहा है या तो xy में रखना है या तो yz में रखना है या तो zx में रखना है. So then what is the value for the maximum flux possible? सी ये तो CPA की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. वो तो गिवन है. वो गिवन है क्वेश्चन में. सर रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. कौन सा प्लेन में रखें? Well, if this is x and this is y and this is z, so in which plane we should be keeping it? Which plane we are keeping? Sir, x and y. X and y, because x and y में ही c और b सबसे ज्यादा आ रहा है. So I should be arranging this in the plane. और अब किस तरीके से रखना होगा इसको? How should I be placing this line of charge? So diagonal. पर इस बार क्या होगा? Face diagonal होगा. मतलब इस तरीके से रखा होगा. That is along the face diagonal over there. And in which plane? In your xy plane, क्योंकि वहां पे जो dimensions है, that is supposed to be c and b, and therefore the length of this is going to become as root of c square plus b square. And so the lambda, using the lambda, that is equal to the q enclosed upon root of c square plus b square, and hence the answer to the question, that is a flux, becomes lambda root of c square plus b square upon epsilon naught is going to be my answer.
राइट। सो बहुत डिफिकल्ट आइडियाज नहीं है, बहुत सिंपलिस्टिक आइडियाज है, पर क्या होता है कि एक बार अगर ऐसे क्वेश्चन हमने पहले देख रखे हो तो थोड़ी कंफर्टेबिलिटी हो जाती है। तो रिंग वाला क्वेश्चन जो हमने देखा, या फिर अभी पीछे हमने इनफाइनाइट लाइन ऑन द स्फीयर देखा, या फिर इसको देखा, ये सारे क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। इसके अंदर आपको जज आउट करना है दैट व्हाट इज द मैक्सिमम आइडिया ऑफ द फ्लक्स। सो फुली अंडरस्टूड है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट में। अब 1D का क्वेश्चन होता तो मतलब सीधा या तो x पे रखना है, सीधा y पे रखना है, सीधा z पे रखना है, तो अंडरस्टूड है कि हम कहाँ रखेंगे, अलोंग x रख देंगे, क्योंकि अलोंग x की साइड सबसे लंबी है। और फिर आपका आंसर सीधा क्या आएगा, लैम्डा इंटू सी। सो द आंसर विल बी लैम्डा सी बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर सिर्फ 1D में इस लाइन को अलाउड होता अरेंज करना। सो सारे डायमेंशंस के क्वेश्चन कर दिए हमने। सो टाइम टू मूव अहेड एंड लुक एट द नेक्स्ट वन। ये तो इजी क्वेश्चन आ गया है, जस्ट चेक ऑन करा तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर का जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। सो काफी इजी। आंसर क्या है फटाफट बोलना। ए पार्ट। दोबारा पढ़ना भाई। और नहीं सर, सी पार्ट होगा। कौन सा पार्ट? सी पार्ट। कौन सा पार्ट? ए और सी तो हो गए, कौन सा? सी पार्ट। 16 गुना हो गया। 16 गुना। ये 16 गुना कैसे हुआ? एरिया 16 टाइम्स नहीं पड़ेगा तो एरिया 16 टाइम हो गया, तो क्या करो फिर उसका फॉर्मूला क्यू। नहीं सर, सेम रहेगा क्योंकि लाइन सेम है मूविंग इन आउटवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एयर इज q enclosed by epsilon naught। सर चार्ज सेम है तो वही flux is equal to q enclosed by epsilon naught, and if it is supposed to be q enclosed by epsilon naught, तो हमारा ये रेडियस a है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का था और आज का पहला मैंने रिवाइज भी कराया था। ये रेडियस हमारा a है और ये रेडियस हमारा 4a है, और चार्ज हमने इसके सेंटर पे प्लेस करा हुआ है। तो इससे जितनी लाइंस निकलेंगी उतनी ही लाइंस क्या करेंगी, बाहर वाले में भी जाएंगी। सो द नंबर ऑफ द लाइंस आर गोइंग टू बी द सेम, रीजन बिकॉज़ द चार्ज enclosed is same and therefore the flux is going to remain the same. That is a D part over there. और जिसको कंफ्यूजन है वो इस बात को समझ सकता है कि यहाँ पे फील्ड भी डिफरेंट होगी। आपने एरिया तो चेक करा, बिल्कुल सही करा, पर यहाँ पे जितनी फील्ड है और यहाँ पे जितनी फील्ड है वो भी तो सेम नहीं है ना। तो यहाँ पे एरिया अगर डिफरेंट है तो वहां पे भी तो एरिया डिफरेंट है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से फील्ड भी कम हो जाएगी, एरिया ज्यादा हो गया पर फील्ड कम हो गई। तो उस तरीके से देख लेते हैं तो भी सही आ जाता। फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं KQ बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर E2 बाय E2 चेक करते हैं, सो KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर हो जाता। और फिर एरिया चेक कर लेते हैं, तो एरिया कितना होता, 4 पाई 2a स्क्वायर। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, एंड इनटू 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल हो जाता और आपका रिजल्ट Q बाय एप्सिलॉन नॉट फिर से सेम आ जाता। दैट इज अगर आप फील्ड के थ्रू चेक कर भी रहे थे तो। सो डन है। पहला वाला तरीका ज्यादा सिंपल है कि Q enclosed के थ्रू चेक कर लिया, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सेम है। दैट्स एन इजी इंटरप्रिटेशन। डिफिकल्ट इंटरप्रिटेशन से भी देख सकते हैं आंसर तब भी मैच ऑन कर रहा है। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर देयर। ये हमारा Q है एंड देयर इज अ लाइन चार्ज ओवर देयर जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा गिवन है। आंसर ऑलमोस्ट गेट्स दैट क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द Q। Find the total flux passing through the Q. Total flux passing through the Q. Cube side length is given as equal to L. क्यूब का क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है और वो हमने पॉइंट चार्ज से करा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज को हमने पहले सेंटर पे रखा था और फिर वो a/4 पे रखा था, फिर हमने कॉर्नर पे रख दिया था, फिर चेक करा था कि कितना फ्लक्स आया था Q/8 एप्सिलॉन नॉट। और कैसे आया था, हमने कुछ क्यूब्स को अरेंजमेंट दी थी कि 7 और क्यूब्स लगा दिए थे जिसकी वजह से वो पॉइंट चार्ज सेंटर पे आ गया था।
फिर जो फ्लक्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 8 क्यूब्स में, और फिर फ्लक्स थ्रू द सिंगल क्यूब हमने 1/8 टाइम्स ऑफ Q by epsilon नॉट निकाल लिया था। तो यहाँ भी शायद वैसा ही है कि क्लियर दिख रहा है कि ये तो बाहर रखा हुआ है, चार्ज जो है एज पर है, तो सेंटर पे तो है नहीं, तो इसको सेंटर पे ले आते हैं, और सेंटर पे लाने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगी कि एक क्यूब अगर हम इसके लेफ्ट पे कंस्ट्रक्ट कर लें, सो दिस विल बी वन ऑफ द क्यूब टू बी कंस्ट्रक्टेड, एक इसके पीछे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बैक ऑफ इट, और एक इसके पीछे द बैक ऑफ इट। So if we are constructing such cubes, so I think फिर हमें शायद समझ में आ जाएगा that we are able to bring this at the center by placing the 4 cubes, and will be easier to actually see it from the top view जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है, कि अगर टॉप व्यू से देखें तो इसको सेंटर पे लाने का आसान तरीका क्या था कि यहाँ पर एक पीछे क्यूब लगाए और 2 उसके लेफ्ट पे लगा दी, सो दिस कम्स एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो इसका मतलब हमें कितने क्यूब्स लगे इसको सेंटर पे लाने के लिए, दैट इज ऑल टुगेदर 4, और अभी ये बिल्कुल सिमेट्रिकली सेंटर पर है, तो इसका मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू जो कि आपका न्यू क्यूब बन गया है, सो द फ्लक्स थ्रू दिस विल बी इक्वल टू द Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर हमें एक क्यूब के थ्रू निकालना है तो अब तो क्लियर हो गया कि वो इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि सॉलिड एंगल सब पे सेम अमाउंट का आएगा, सॉलिड एंगल सब पे पाई 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 आएगा, π/2 नहीं, π/2 प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल आपका सब पे, क्योंकि मैक्सिमम 4 पाई होता है, तो सब पे इक्वल आएगा। तो हमें जो इस क्यूब के थ्रू निकालना है, सो फ्लक्स थ्रू दिस गिवन क्यूब विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेट फ्लक्स, सो दैट्स फ्रॉम देयर 1/4 of Q by epsilon naught should be the answer। अब वो Q enclosed की वैल्यू लिख लो, तो Q enclosed कितना आएगा, जितनी लाइन लेंथ L है, सो इतना ही चार्ज enclose हो पाएगा, so therefore the Q enclosed will be lambda into L, and therefore the result should be equal to lambda into L upon 4 epsilon naught should be the result, but the flux through that particular cube. So that's the A part over there, and the B part is flux passing to the surface which are in contact with the wire. तो ये भी हमने क्यूब के थ्रू किया था, कि अब ये तो पता चल गया कि इस क्यूब के थ्रू कितना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इस क्यूब के थ्रू the flux is lambda L by 4 epsilon naught। अब वो कह रहा है find a flux passing to the surface which are in the contact with the wire, so which are in the contact with the wire, एक तो ये वाला surface हो गया, this surface, and another surface what is supposed to be this surface जो कि contact में है ना इन पे, so what is going to be the flux which are in contact with the surface, और भी surface है ये वाला, and I think there is one more surface here, ये जो 4 surface है इनमें किसी भी surface पर lines hit नहीं करने वाली हैं, क्योंकि if I am going to construct the lines for this arrangement, so lines जो बनेंगी वो इसके perpendicular बनेंगी, तो ऐसे आ रही होंगी, these are supposed to be the lines over there, I feel so, right, इस तरीके से। So flux passing the surface which are in not contact with the wire and which are in contact with the wire, so what should be the possible answer? What should be the possible answer? Answer please. सर 0 0, क्योंकि कितने सरफेस पे 0 है सर, जॉन से कांटेक्ट में कितने हैं 4 4, there are 4, one this second this, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक साइड वॉल के कॉर्नर पे अगर हमने चार्ज रखा हुआ है तो उससे जो फील्ड लाइन है वो तो उसके परपेंडिकुलरली मूव करेंगी, सो कितने सरफेस को हिट करने वाली है
So it is going to hit only two surfaces if you look properly. एक तो इस पर्टिकुलर सरफेस को हिट करेंगे, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस को, ये लाइन उधर भी जाएंगे उस वाले सरफेस पर. And second, it is going to hit on this particular surface, this surface. So two surfaces. सिर्फ ये लाइंस उस सरफेस को हिट करेंगे और इस सरफेस को हिट करेंगे, और बाकी जितने भी सरफेसेस हैं which are 4 in number, ऊपर वाला, नीचे वाला और इधर वाला और इधर सामने वाला, इन चारों के ऊपर हिट नहीं करेंगे. इसका मतलब जो ये चारों थे वो तो कॉन्टैक्ट में ही थे पर्टिकुलर सरफेस, तो उनके ऊपर जो फ्लक्स आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, और बाकी जो दोनों बच गए तो उन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है. इसका मतलब इसका हाफ बनेगा. So the answer for the C part will be the flux will be through that particular faces will be half of this and will be lambda L upon 8 epsilon naught will be the result. जैसे हमने पॉइंट चार्ज के केस में देखा था कि फर्दर जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो 3 फेसेस पे हो रहा था और बाकी 3 फेसेस पे 0 आ रहा था. लाइन चार्ज के केस में आपको दिख रहा है कि 4 फेसेस पे फ्लक्स 0 आ रहा है और सिर्फ 2 ही फेसेस पे फ्लक्स कट ऑन हो रहा है, एंड देयरफॉर द फ्लक्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स. सो मेलो डाउन क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में कि सबसे पहले तो क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होता है और उसके बाद क्यूब के एक फेस पे कितना होता है. सो 2 क्वेश्चन है, पॉइंट चार्ज का और दूसरा किसका है, लाइन चार्ज का. तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के दिखते हैं, पॉइंट चार्ज का और लाइन चार्ज का. तो आपने जितने भी क्वेश्चन अभी देखे होंगे वो सारे के सारे हमारे पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है. चलो लेट्स मूव फर्दर फ्रॉम हियर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस और ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्योरली गॉस लॉ के नहीं है. जैसा मैंने बताया था 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज अ गॉस लॉ प्योर क्वेश्चन, एक फ्लक्स का प्योर क्वेश्चन और एक आइडिया ऑफ द गॉस लॉ विद द फ्लक्स. तो एक्सक्लूसिव गॉस लॉ के क्वेश्चन अभी हमने टच ही नहीं करे, हमने बाकी दोनों क्वेश्चन करे, एक तो फ्लक्स का और एक इंटरप्रिटेशन की फ्लक्स का जो है वो आपका चार्ज के साथ में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस हमने टच डाउन करे. प्योर गॉस लॉ के क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, दैट बी ओनली गॉस लॉ क्वेश्चन. ये बिल्कुल गॉस लॉ ओनली क्वेश्चंस नहीं है, फ्लक्स एंड चार्ज बेस्ड क्वेश्चंस. नेक्स्ट, so this is given a point charge is placed at 4 cm above a square plate. So it is placed at 4 cm above a square plate and 8 cm by 8 cm having the charge density given. Find a flux through that plate. तो वो shaded plate दिखा रखी है, क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कर दिया वहां पे. एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है कि हमारे पास में ये एक स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट की डायमेंशन जो है वो 8 cm बाय 8 cm गिवन है और हमने चार्ज को प्लेस कर दिया एंड दैट पर्टिकुलर चार्ज इज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड एट 4 cm अबव. तो यहां से 4 cm पे इस चार्ज को हमने प्लेस कर दिया और बोला है कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालो, मतलब ये जो प्लेट है इसके थ्रू आपने फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेट. सो दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन व्हिच इज देयर. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, इसके थ्रू निकालना, क्योंकि पॉइंट चार्ज की जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है. मतलब अगर इसकी लाइंस हम बनाते तो बहुत डिफिकल्ट था इसकी लाइंस को स्केच ऑन करना, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पे कितने एंगल पे हिट करेंगी इसको. सो दिस इज टू डिफिकल्ट टू एक्चुअली सॉल्व इट इन दिस मैनरिज्म. तो हमने फिर जुगाड़ लगाया, टिकरम लगाई. हमने क्या सोचा कि यार अगर इसको किसी सरफेस में एनक्लोज कर दें तो फिर शायद काम बन सकता है. तो हमें ध्यान आया कि स्क्वायर ये बना है तो स्क्वायर की 3D बना देते हैं. तो स्क्वायर की जो 3D है वो क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी. तो हमने इसके आसपास ये वॉल्स खड़ी कर दी. कितनी वॉल्स खड़ी कर दी, 5 वॉल्स खड़ी कर दी, मतलब 1 2 3 4 एक छत खड़ी कर दी. और ऐसा करने से क्या हुआ कि ये चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली सेंटर पे आ गया. वैसे तो नहीं था पर ऐसी इमेजिनरी 3D स्ट्रक्चर खड़ा करने से दिस चार्ज इज नाउ सिमेट्रिकली एट द सेंटर. It's symmetrically at the center of the cube. So अगर ऐसा हो गया so clear हो गया कि जो imaginary cube बना लिया so flux through the cube तो हमें पता ही है that is q by epsilon naught. और क्योंकि वो symmetrically placed है
तो जितने भी 6 फेसेस ऑफ द क्यूब होंगे सब पे फ्लक्स इक्वल कटेगा. So the flux through the face is supposed to be 1/6 of this value. और उनमें से ही एक फेस ये वाला है. तो सेम क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये A साइड अगर है तो ये A/2 पे रखा हुआ है, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर है और इसको रखा 4 सेंटीमीटर पे. So the answer is directly working as 1/6 of Q/ε0. वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं by placing the result. So get answer please. बस आपको Q की वैल्यू प्लेस करनी है, वो सिग्मा से आ जाएगी. एंड सिग्मा इज सपोज्ड टू बी इक्वल टू Q अपॉन एरिया. सर ए पार्ट कितना? ए पार्ट चार्ज डेंसिटी यूज हुई है जो सीधा पॉइंट चार्ज से निकाला, या चार्ज डेंसिटी को भी यूज किया? सच नहीं हुई चार्ज डेंसिटी में. सो सिर्फ चार्ज से यूज किया. सो 1/6 into Q की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁻11 एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻12. ये ऊपर जाके दैट बिकम 10 एंड अपॉन 6 into 8.85, so 6 5 30, 6 8 48 and 51. So कितना हो 53.10, something like that. So 10/53, that means that is 1/5.3. So 1/5 होता तो 0.2 हो जाता. So 1/5.3 है तो 0.2 से हल्का सा कम आएगा. तो 0.2 से जो कम है that is 0.18 over there. So that's working as a result over there. Right? और इसकी वजह से फ्लक्स जो आएगा बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, जो कि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है. सो इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो कितनी गिवन है 0.5 into 10⁻⁸. सो वो जो Q होगा दैट इज 0.5 into 10⁻⁸ एंड इनटू एरिया. तो एरिया कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 64 into 10⁻12 ये आ जाएगा. That will be the value for the charge over there. Right, that is the sigma charge density on the plate and into the area. So that is this value. तो इसको अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे, क्योंकि Q/ε0 से देखना मतलब अगर देखेंगे तो ये काफी कम वैल्यू आएगी, तो काफी लोअर डेसिमल्स में चली जाएगी. सो इफेक्ट नहीं करेगी आंसर को. एंड therefore the answer is going to still remain as what? The A part. 0.188 volt-meter is the result. So फिर से एप्लीकेटिव क्वेश्चन हो गया और इमेजिनरी सरफेस को कंस्ट्रक्ट करने का आइडिया हो गया. उसी इमेजिनरी सरफेस को प्योर गॉस लॉ के क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस. तो एक तरीके का ये जो हमने इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्रिएट करा है इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सपोज्ड टू बी अ गॉसियन सरफेस. सो इट इज अ प्योर इमेजिनरी सरफेस ओवर देयर और उससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं. राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्वेश्चन. कि हमारे पास एक क्यूब पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेंशन है कि y और z में नहीं है, सिर्फ x में है. पर x में भी ना नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है क्योंकि वो x के साथ वेरी कर रही है. सो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड ओवर देयर एंड इट्स मेंशन्ड एज α√x. अल्फा की वैल्यू गिवन है. सो दैट इज 800√x. दिस इज द फील्ड बेसिकली इन द x डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म है. और फ्लक्स टू द क्यूब कैलकुलेट करना है. सो जो क्यूब है उसकी साइड लेंथ a गिवन है और ये जितना डिस्टेंस है ये भी हमें a गिवन. सो हमें इसके थ्रू फ्लक्स इवैल्यूएट करना है. तो हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज कि फील्ड हमें पक्का पता है कि x डायरेक्शन में है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में है. सिंस इट इज इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन तो यहां पे इस सरफेस पे फील्ड जो है एंटर करेगी और इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या करेगी? एग्जिट करेगी. वैसे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है पर डायरेक्टेड एक्स पर ही है. दोबारा से, वैसे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है पर डायरेक्टेड एक्स पर ही है. इसका मतलब इस रीजन के लिए एट अ पर्टिकुलर एक्स फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा. दोबारा से,
फील्ड वैसे नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x फील्ड की वैल्यू इस एरिया के लिए यूनिफॉर्म फील्ड हो। और अगर हम डिफरेंट x देखते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a के बराबर, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2a के बराबर। सो डेफिनेट सी बात है कि जो सेकेंड वाला सरफेस है वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे फील्ड डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। पर उसने पूरे एरिया के लिए जो फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म ओनली। इस रीजन में स्ट्रॉन्गर फील्ड है पर यूनिफॉर्म है, तो इसलिए इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, अगर हम एक क्लोज सरफेस देख रहे हैं तो इस सरफेस पर लाइन एंटर करेंगे और यहां से एग्जिट करेंगे। इसका मतलब यहां वाला जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा और यहां वाला जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि लाइन वहां से एग्जिट करेंगे। So the net flux is going to be phi2 minus of phi1 will be the value for the net flux. और जितनी फील्ड यहां है उसको E2 लिख लेते हैं into area. So that is E2 into area. Area तो सिंपल है a square, क्योंकि स्क्वायर वॉल हो गई वहां पे, एंड माइनस जितनी फील्ड यहां पर है that is E1. So that is E1 into a square. So हमने बहुत ही इजीनेस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, जबकि क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का है, लेकिन फिर भी बहुत इजीनेस से अटेम्प्टेड है। a स्क्वायर कॉमन है और E2 माइनस E1 देखना है, सो E की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। सो दैट इज 800 इनटू x ओवर देयर 2a है, सो दैट्स 800 रूट 2a इनटू a स्क्वायर माइनस यहां पे x की वैल्यू a के बराबर है, सो दैट इज 800 रूट ऑफ a एंड इनटू a स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है। उसमें आपको a की वैल्यू गिवन है, दैट a वैल्यू ओवर देयर इज 0.1 मीटर, वो आप न्यूमेरिकली फीड अप कर सकते हैं। यहाँ पे 800 और a स्क्वायर कॉमन है, रूट a भी कॉमन है, एंड दैट्स रूट 2 माइनस 1। सो होपफुली यू कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, कैलकुलेट करके वैल्यू बता दो कितनी है, एंड दैट इज इवन योर क्वेश्चन गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा। As we promised in the initial stages कि सारे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं आने वाली है, और हमने आज इतने सारे क्वेश्चंस देखे, लास्ट लेक्चर में भी देखे थे, इंटीग्रेशन अभी तक हमारे पास आई नहीं है। सो देयर विल बी क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन, पर ये बहुत लिमिटेड है, दे वेरी लिमिटेड क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रिटेशन के है कि किस तरीके से तीनों आइडियाज को आप इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी आपने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होने के बावजूद अगर हम ध्यान से इंटरप्रेट कर रहे थे तो एक रीजन में आपको फील्ड यूनिफॉर्मली फील्ड हो रही है, ठीक है ना, तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Answer please for this. 3.61. 3.61. 3.61. That's it. पूरा 3.61. What is the root 0.1? ये root 0.1 कितना होता है? रूट 0.1 कितना है? 1.31. 3.1. 1.3.1. 0.3 नहीं ले सकते, 0.33. 0.3 0.3 है अप्रोक्सीमेटली, मतलब 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.32 रख लेते हैं। 0.31. 0.31. So 8 into 0.41 into 0.31. अब ये मल्टीप्लाई कर लिया, so that is 3.28 into 0.3 दे देता हूँ approximately. So 0.984 कितना आ रहा है? यस सर 1.024 आ रहा है। 1.024 आ रहा है, मतलब 0.31 लेके 1.02. So that's the value for the flux calculated. और B part पूछा हुआ है charge within the cube. So the simple है that phi will be equal to Q upon epsilon naught. So the Q enclosed will be the phi आपने निकाल लिया, that is 1.024 and into 8.85 into 10 power minus. So ये 10 power minus 12 को क्या बोलते हैं, मतलब प्रीफिक्स में
जैसे 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, 10⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻12 को क्या बोलते हैं? Pico. गीगा पिको. So that is supposed to be a picocoulomb over there. तो इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आ रहा है 9 point something आ जाएगा. So that many picocoulomb is going to be the charge over there. Right? So different question था, फिर भी डन है और बिना इंटीग्रेशन के डन है. So strengthened question है और ये बोर्ड्स में देखा गया है कि बार बार रिपीट होता है क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन है और एचओडीएस कैटेगरी में माना जाता है. So आगे बढ़ रहे हैं. We are moving ahead to the next one. बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है. I like this question. A hemispherical body is placed in a uniform field and what is the flux linked with a curved surface पूछा हुआ है if the field is perpendicular to the base. तो फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बेस है और पूछा हुआ है व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद अ कर्व सरफेस और आपको ऑप्शन भी दिए हुए. यू हैव द गुड ऑप्शंस ओवर देयर. सो कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन. Flux to the curved surface. Flux to the curved surface. E into pi r square ही रहेगा. E into pi r square है या 2 pi r square? C से part. इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा एक बार. इंटीग्रेट करना नहीं कर सकते, करने को कोई मना नहीं करता है. इंटीग्रेशन इज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स बट द गुडनेस इज कि फिजिक्स के अंदर है इंटीग्रेशन ना यूज करें. प्रोजेक्शन तो सेम ही रहेगी जो बेस का वो है एरिया. हाँ वो भी सही कह रहे हैं और भी उससे इजी भी बोल सकते हैं कुछ. वैसे सही कह रहा है, कुछ गलती नहीं है मेरे कहने में, but still you can do something more good over there. अच्छा ये बताओ what is the net flux through this? Zero. क्योंकि जितनी लाइंस एंटर करी उतनी एग्जिट करे. किसके थ्रू जीरो है फ्लक्स? किसके थ्रू जीरो है फ्लक्स? हेमिस्फीयर के थ्रू. सो द नेट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 0. अब हेमिस्फीयर के कितने सरफेसेस हैं? हेमिस्फीयर के कितने सरफेस हैं? 2. एक तो हो गया आपका कर्व और दूसरा क्या हो गया? प्लेन. So I can write flux through the curved surface plus flux through the plane surface as equal to 0. Net flux क्यों 0 वो तो पता है, lines entering equal to line leaving. इसका मतलब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ flux through the curved surface is minus of flux through the plane surface. अब flux through the plane surface निकालना बहुत आसान है क्योंकि flux through the plane surface पे lines enter कर रही थी और enter कर रही थी तो flux क्या था? नेगेटिव था. इसका मतलब फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस कितना था? जितना प्लेन सरफेस का एरिया. सो इट इज अ प्लेन सरफेस एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर एंड इनटू द फील्ड हमें गिवन है E और माइनस आ रहा है. कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव फ्लक्स क्योंकि यहां से लाइंस एंटर कर रही है. तो ये तो क्लियर है कि कर्व सरफेस से लाइंस एग्जिट कर रही है तो आंसर प्लस ही आएगा. तो आंसर आपके सारे पॉजिटिव ही गिवन है एंड द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस बिकम्स माइनस ऑफ the flux to the plane surface, so that is minus pi r square into E and hence the answer works as plus pi r square into E as a result. और वही वो प्लेन प्रोजेक्शन वाली बात भी देखेंगे तो ऊपर से क्या दिखेगा, ये जो कर्व सरफेस है उसका भी प्रोजेक्शन क्या दिखेगा? सर्कल ही दिखेगा. तो उस तरीके से भी देख सकते हैं तो आपका रिजल्ट सेम ही आएगा. सो हेंस इट इज वर्किंग करेक्टली एज द सी पार्ट pi r square into E. राइटफुली डन. इजी क्वेश्चन था. इसका एक रेप्लिका क्वेश्चन भी आता है और इसका रेप्लिका क्वेश्चन कैसे वो भी दिखाता हूँ. दिस इज अ रेप्लिका क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. ये आपका सेम हेमिस्फीयर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन पैरेलल टू द बेस. इट इज लाइक दिस. This is like this, right? This is the arrangement which is given and we need to find a flux through the hemisphere. We need to find a flux through the plane surface and we need to find a flux through the curved surface. Can you please find it out? This E naught and this radius is supposed to be R. Answer please. हेमिस्फीयर से तो 0 ही होगा. हेमिस्फीयर से कितना होगा? 0 से 0 होगा. ओके. प्लेन सरफेस
सर प्लेन सरफेस कौन से वाला, मतलब बेस का? प्लेन सरफेस तो वही है ना, बाकी तो कर्व्ड है। तो ये प्लेन हो गया, ये कर्व्ड है। इससे भी रहेगा। प्लेन सरफेस में कितना रहेगा? 0। रीजन क्या होगा प्लेन सरफेस में 0 होने का? सर क्योंकि पैरेलल है। Lines are tangential. Lines are absolutely tangential. So flux to the plane surface 0 है because the lines are tangential. Absolutely fine. And the flux to the hemisphere is 0 क्योंकि कैसे पता चला flux to the hemisphere is 0? सर जितनी लाइंस आ रही है उतनी लाइंस तुम्हारा बोलना flux to the hemisphere 0 कैसे पता चला? सर जितनी एंटर कर रही है उतनी मतलब आ रही है। पर वो तो कर्व सरफेस में एंटर कर रही है, ये हेमिस्फीयर में एंटर कर रही है। कर्व सरफेस पे एंटर कर रही है, ध्यान से देखें। ये लाइंस कहां पे एंटर कर रही है? कर्व सरफेस पे, और कर्व सरफेस से ही बाहर निकल रही है। समझ आ रही बात? सो कर्व सरफेस पे फ्लक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि कर्व सरफेस पे एज मेनी लाइंस एंटर is equal to as many lines are leaving the curved surface. समझ आ रही है बात? और क्योंकि हेमिस्फीयर इज वर्किंग फ्रॉम द प्लेन सरफेस प्लस द कर्व सरफेस एंड देयरफॉर इट इज वर्किंग एज 0, क्योंकि दोनों पे 0 आ रही है। दोनों के वजह अलग अलग थे। इस पे लाइन टेंजेंशियल थी तो फ्लक्स 0 था, और कर्व सरफेस पे देख रहे हैं तो लेफ्ट से जितनी एंटर कर रही थी राइट से उतनी एग्जिट कर रही थी, तो उसकी वजह से 0 आ रहा था। और हेमिस्फीयर दोनों से मिलके बनता है, तो उसके अक्रॉस जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना? ठीक है ना? तो असर्शन रीजनिंग को ध्यान से देख लेना कि किस वजह से 0, उसका परफेक्ट रीजनिंग है वहां पे। चलो ये भी डन है। आई हैव अ डी पार्ट फॉर यू एंड द डी पार्ट इज फाइंड द फ्लक्स एंटरिंग द कर्व सरफेस। कैन यू आंसर दैट? Find a flux entering the curved surface. E into pi r square by 2. Yes, sir. हाँ जी सर यही है। दोबारा बोलो। E into pi r square by 2. Yes, sir. E into pi r square by 2 वो कैसे है? सब एरिया प्लेन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा? इसके परपेंडिकुलर तो डिस्क हाफ डिस्क बनेगी। हाफ डिस्क बन जाएगी। So it is going to be this area. So the area for that becomes as equal to pi r square by 2, and hence it should be as E naught into pi r square by 2, and technically negative आंसर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नेगेटिव प्रेजेंट होगा तो हम नेगेटिव ही मार्क करेंगे, राइट? अगर नहीं होगा तो पॉजिटिव मार्क करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए तो हमें नेगेटिव मार्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि एंटरिंग है। एग्जिटिंग होता है तो पॉजिटिव होता है, एंटरिंग होता है तो नेगेटिव होता है, राइट? सो आपको दिख रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बट येट वी हैव पेंशेंट कि हम इसके अंदर कुछ गलती कर लें, है ना? तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, उसके पीछे के हल्के फुल्के रीजनिंग क्या है वो क्लियरली पता होनी चाहिए। सो मुझे पर्सनली ये वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं। मतलब सेम हेमिस्फीयर है लेकिन फील्ड के डायरेक्शन बदल रहे हैं, इसमें भी कोई और ट्विस्ट हो सकता है, तो उसको भी ऑब्जर्व करके देखेंगे। But this is another question in front of you. Try to solve it. 1/4 of the sphere of radius r is removed. ये पूरा sphere था, उसमें से इतना पार्ट रिमूव कर लिया, गायब कर दिया। This much part is removed, and electric field is existing parallel to the xy plane. The electric field किस डायरेक्शन में वो आपको दिख रही है, राइट? और कितने एंगल पर है वो एंगल मेंशन है 45 डिग्री। फाइंड अ फ्लक्स टू द रिमेनिंग कर्व्ड पार्ट। मतलब इतना पार्ट रिमूव कर लिया, बाकी जो बचा हुआ है उसके थ्रू आपको इवैल्यूएट करना है। सो प्लीज ट्राई टू इवैल्यूएट। कोई तरीका है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स टू दिस अरेंजमेंट? नेट फ्लक्स, उससे नेट फ्लक्स 0 because as many lines are entering is as many lines are exiting. इसका मतलब once again I am able to enter that the net flux is equal to 0. अब नेट फ्लक्स अगर 0 है तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूं, ये जो मिसिंग वाला पार्ट है और जो रिमेनिंग कर्व्ड पार्ट है। सो द फ्लक्स थ्रू द मिसिंग पार्ट and the flux through the remaining part is supposed to be 0, क्योंकि पूरा नेट फ्लक्स 0 है,
which means a flux through that remaining part should be the minus of the flux through the missing part. So we just need to find out the flux through the missing part. Please answer that. और वो जो missing part है उसमें flux enter कर रहा है ना, क्या कर रहा है, enter कर रहा है, तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. So flux to the remaining part पे आपका net positive आएगा क्योंकि वहां से बाहर ही निकलता हुआ देखा. So get the answer please. अब वो डिफिकल्ट है ना, वो डिफिकल्ट है क्योंकि कर्व था, तो हमने उसका एरिया प्रोजेक्ट कर लिया. अब एरिया किधर प्रोजेक्ट करते हैं वो भी एक इशू आ रहा था कि किधर देखते हैं. तो फील्ड एक्चुअली एक्स और वाई दोनों में, तो हमने पहले फील्ड को स्प्लिट मारा, तो फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आ गया, कितना हो जाएगा e cos 45, मतलब e by √2 आ जाएगा, और फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आ गया, वो भी सेम हो गया, दैट इज e by √2. और फिर हमने एरिया चेक करे, तो एरिया भी दो मिल रहे हैं प्रोजेक्टेड, एक इधर वाला एक इधर वाला, A1 एंड A2. तो जो इधर वाला A2 वाला जो एरिया है जो कि इधर वाले प्लेन में रखा हुआ है, दिस एरिया, इस एरिया के लिए ये वाली लाइन तो टेंजेंशियल है, लेकिन ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये इसके ऊपर फ्लक्स क्रिएट करेगी. और जो ऐसे जो वर्टिकल ये वाला एरिया, दिस एरिया जो नीचे रखा हुआ, दिस एरिया, दिस वन, दिस पर्टिकुलर एरिया जो वर्टिकल उसमें है, उसके लिए e by √2 टेंजेंशियल है, और e by √2 इधर वाली क्या है, परपेंडिकुलर है. तो इस पे ये वाला फ्लक्स क्रिएट करेगा और ग्रीन वाले पे ये वाला फ्लक्स क्रिएट करेगा, और दोनों नेगेटिव है क्योंकि एंटर कर रहे हैं दोनों एरिया पे, तो इजी हो गया. इसका एरिया तो आपको पता ही है, कितना एरिया है इसका, πr²/2, और इसका भी एरिया कितना है, πr²/2. तो इस ग्रीन वाले पे कितना हो गया, माइनस e by √2 इंटू πr²/2, सही लिखा. और अगर हम इस वाले पे चेक करें, ब्लू वाले पे तो सेम आ रहा है और वो भी माइनस आ रहा है, सो माइनस e by √2 इंटू πr²/2. ये आपका फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ द मिसिंग कर्व सरफेस. सो दैट्स अ फ्लक्स बिकॉज ऑफ द मिसिंग कर्व सरफेस. तो ये कंबाइन हो गया, सो दैट इज माइनस e by √2 इंटू πr²/2 इंटू 2. तो ये दोनों में सेम ही आ रहा है क्योंकि फील्ड की वैल्यू भी x और y में सेम है, और जितना एरिया प्रोजेक्टेड है वो भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है. सो दैट 2 and 2 gets cancelled out, so that is minus e by √2 into πr². और इस लॉजिक से the flux to the remaining is going to become the positive part of it, and therefore the flux through the remainder becomes equal to plus e by √2 into πr². So I do have an option for that, and that's the C part, e by √2 into πr². So सारी बातें इसके अंदर कंबाइन होके आई, टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर फील्ड का कॉन्सेप्ट कंबाइन होके आया, नेट फ्लक्स जीरो है, उसको कैसे ट्रीट करना है वो कॉन्सेप्ट यूज होकर आया, और प्लेन प्रोजेक्शन एरिया उसको कैसे यूज करना है वो कॉन्सेप्ट भी यूज होके आया. सो प्रीटी नाइस क्वेश्चन जो कि हमने मतलब क्रैक कर लिया बिना इंटीग्रेशन के. एक बार फिर से हमें बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स डेवलप करे, हर क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका देखा है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे जो कि मतलब ट्विस्ट में हो, लेकिन न्यू ट्विस्ट लगे हमें जब भी हम क्वेश्चन को देखें, तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम अनटर्न नहीं छोड़ रहे, तो सभी तरीके के क्वेश्चन को टच ऑन कर रहे हैं. एंड दिस इज द फन ऑफ दिस आर्टिकल, जिसको मैं फ्लक्स बोलता हूँ, किताबें गॉस लॉ बोलती है, पर मेरा आइडिया इसका बोलने का हमेशा फ्लक्स ही रहता है क्योंकि पूरा आर्टिकल फ्लक्स का है, उसके इंटरप्रिटेशन का है, मतलब फील्ड, चार्ज एंड फ्लक्स, ये मेरा आर्टिकल है. और किताबें उसको गॉस लॉ बोलती हैं, सारी अच्छी किताबें उस आर्टिकल को गॉस लॉ बोलती है, बट आई लव टू कॉल दिस आर्टिकल स्टिल एज अ फ्लक्स. और सारी क्वांटिटी में चला हुआ आर्टिकल है. जब से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करी थी, और जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करी थी और मैंने 15-16 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो तब मैंने मेंशन करा था कि ये जो है ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये फ्यूचर में जाके आपको गॉस लॉ और फ्लक्स में हेल्प करेंगे. कि इतने डिटेल में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि कोई भी चीज मिस आउट ना हो और आगे किसी भी क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना आए. तो दैट्स अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओवर देयर कि आपका फिर से हेमिस्फीयर है एज यू कैन सी, और हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमने चार्ज को प्लेस करा हुआ है.
और हमसे बोला जा रहा है that find the flux through the plane surface and through the curved surface. So the charge, you can see the charge is placed at the center of curvature of the hemisphere, and the question stands as A part, find the flux through the plane surface of it, and the B part, find the flux through the curved surface of it. So can you please help me out in both plane surface and the curved surface? Plane surface and the curved surface, plane and the curved. So I think hint तो ऊपर बिल्कुल डाल ही दिया है, Gaussian surface दिखा के, जैसे हमने स्क्वायर प्लेट और क्यूब का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वही हिंट यहाँ पे डाल दिया है कि क्या करा है हमने, एक इमेजिनरी सरफेस बना लिया है, मतलब ऊपर एक और हाफ हेमिस्फीयर इमेजिन कर लें ताकि वो चार्ज उस पूरे गॉसियन सरफेस में जो कि इमेजिनरी है उसके सेंटर पे फील हो जाए, और अगर सेंटर पे फील हो गया तो फील्ड लाइन तो इसकी बाहर आनी है, इधर से भी और उधर से भी। तो अगर हम चेक ऑन करें तो यहां से जितनी फील्ड लाइन पास ऑन करनी है ना, उतनी ऊपर से भी पास ऑन करनी जितनी यहां से पास ऑन करनी है। इसका मतलब नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस व्हिच आर गोइंग टू क्रॉस द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट आर आइडेंटिकल, सो दो हाफ्स हो गए। और अगर पूरे स्फीयर के थ्रू जो पूरा गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स देखें, सो दैट इज सिंपली Q by epsilon naught, क्योंकि उसके अंदर तो चार्ज एनक्लोज हो गया है और जो गॉसियन सरफेस है वो दो पार्ट से बन रहा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। करेक्ट है, ट्वाइस ऑफ द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों मिला के, सो दैट फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर वर्क्स अपॉन एज Q upon 2 epsilon। So, कितने बढ़िया क्वेश्चन है फॉर द केस ऑफ द हेमिस्फीयर। पहले फील्ड बेस्ड क्वेश्चन करें, फील्ड के भी डायरेक्शंस देखें कि फील्ड कभी ऐसे भेजी थी और कभी फील्ड ऐसे भेजी थी, और अब 4 सेंटर पे रख दिया तो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, और फिर क्वेश्चन फ्लक्स पूछ रहा है, फिर भी हम आंसर कर पा रहे हैं, एंड आंसर इज Q by 2 epsilon naught। बट देन हमसे पूछा तो था ही नहीं है, हमसे तो पूछा ये था, हमने तो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पे निकालना है, ये तो हेमिस्फीयर पे गिवन है। फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि जो लाइंस हैं वो इस प्लेन सरफेस के कैसे आएंगी, और सर उसके तो टेंजेंशियल आ जाएंगी। उसकी कैसे आ जाएंगी? टेंजेंशियल। इसका मतलब प्लेन सरफेस पे जितना फ्लक्स आ रहा है दैट इज कमिंग एज इक्वल टू 0, और उसका रीजन पता चल रहा है दैट द फील्ड लाइंस आर टेंजेंशियल। तो प्लेन सरफेस पे तो फ्लक्स नहीं आ पा रहा है, तो फिर तो क्लियर है कि हेमिस्फीयर का जो फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस से मिलके आ रहा है, लेकिन क्योंकि प्लेन सरफेस का तो 0 हो गया, so therefore the flux to the curved surface that works as Q upon 2 epsilon naught as your answer to the question। Hopefully बात समझ में आ रही है कि प्लेन सरफेस पे 0 है और सारा फ्लक्स जो है वो कर्व सरफेस पे ही हिट ऑन कर रहा है, और जितनी लाइंस ऊपर है उतनी नीचे है, तो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, and that is Q upon 2 epsilon naught। Fun of using the imaginary surface and a Gaussian surface, और यहीं से फाइनल लीग ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ना वो बिल्डअप होंगे फॉर द Gaussian surface इन्वॉल्वमेंट, और जिसमें थोड़ी बहुत इंटीग्रेशंस भी आएंगी, देखेंगे हम उसको डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में। अभी तो मैं उस आइडिया पे नहीं गया, लेक्चर को बिल्कुल इजी रखा है, और ये उसका कॉन्टिन्यूएशन क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है। कॉन्टिन्यूएशन क्वेश्चन है उसी पार्ट का, दैट इज if the charge Q is shifted slightly above the center of curvature, ठीक है, and what the question is asking, find the flux through the plane surface and find the flux through the curved surface। We need to find the answers for this। Can you please try this out? डायग्राम में दिखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि हल्का सा बस इसको शिफ्ट कर। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस एंड द कर्व सरफेस? कैन यू प्लीज आंसर?
पिछले वाले केस में it was exactly at the center. The charge was exactly placed at the center over there. यहाँ पे हल्का सा मूव अप कर दिया। आंसर प्लीज। तो इस वाले केस में प्लेन सरफेस पे फ्लक्स 0 था और कर्व सरफेस पे q by 2 एप्सिलॉन नॉट आता। अब प्लेन सरफेस पे क्या प्लेन सरफेस पे 0 आएगा? हाँ या ना? नो नो सर, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब टेंजेंशियल थोड़ी ना। टेंजेंशियल। मतलब तो क्या होगा फिर? मतलब नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव है। नेगेटिव। अच्छा, क्योंकि लाइंस एंटर करेंगी इस चार्ज से बाहर। इधर जो जा रही है उससे तो कोई मतलब है नहीं, पर इधर तो एंटर करने वाली है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है कि इधर क्या करने वाली है? एंटर करने वाली है। तो इसका मतलब प्लेन सरफेस के ऊपर लाइंस को भी एंटर कर रही हैं, तो इस वजह से इस पे नेगेटिव फ्लक्स आएगा। सो नेगेटिव फ्लक्स। और कर्व सरफेस से एग्जिट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब यहां से कितना है? पॉजिटिव फ्लक्स। अच्छा ये बताना, प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पे इक्वल फ्लक्स आएगा या डिफरेंट आएगा? प्लेन और कर्व पे इक्वल ना, क्योंकि जितनी लाइंस एंटर करी उतनी एग्जिट करेंगे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड थ्रू द कर्व इज गोइंग टू बी द सेम। अच्छा ये बताओ, हेमिस्फीयर पे नेट फ्लक्स कितना है? 0 क्योंकि चार्ज वैसे भी आउटसाइड है। फॉर्मूले के हिसाब से नेट फ्लक्स कैसे आता है? Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें बोला जाता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट हेमिस्फीयर, समझ आ रहा है क्वेश्चन? अगर हेमिस्फीयर के थ्रू बोला जाता तो हम बोल देते कि यार देखो Q enclosed तो आ ही नहीं रहा, वो तो चार्ज आपने बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब वो 0 है। सो हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स 0 है, लेकिन प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पे है। और प्लेन सरफेस पे उतना ही है जितना कर्व सरफेस पर है। वो अलग बात है कि प्लेन सरफेस पर नेगेटिव है क्योंकि लाइंस एंटर करेंगी, और कर्व सरफेस पे क्या है? पॉजिटिव है। कैन यू गिव द एग्जैक्ट आंसर कि प्लेन सरफेस पे कितना होगा? कैन यू गिव द एग्जैक्ट आंसर? सो हम बोलेंगे दोनों में इक्वल है और ये स्लाइटली मूव कर रहा है। स्लाइटली के लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि जो फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है, दोबारा बोल रहा हूं, जो फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो खासम खास चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही है जैसे पहले था। देखें, वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। ऊपर वाली हमने देखी नहीं है, तो अगर इस चार्ज को हल्का सा ऊपर करोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हल्का सा ही बदलेगा ना। मतलब नंबर ऑफ लाइन जो इधर जा रही थी और जो नंबर ऑफ लाइन ऊपर जा रही थी उसमें खासम खास कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर आप इसको बहुत ज्यादा इधर मूव करोगे तो आएगा कि यहाँ पे फिर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। फिर ये तो स्लाइड मूवमेंट है, तो स्लाइड मूवमेंट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कोई खासम खास चेंज हुआ नहीं है। इसका मतलब जितना फ्लक्स ऊपर जा रहा था उतना नीचे जा रहा था। तो फिर मुझे याद आया कि ऊपर जितना फ्लक्स जा रहा था वो था Q by 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जितना फ्लक्स जा रहा था दैट वाज Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे तो अभी भी उतना ही रहेगा। किसमें? कर्व सरफेस पे। और प्लेन सरफेस पे तो भाई उसी का नेगेटिव है। इसका मतलब the flux to the curved surface is still equal to plus Q upon 2 epsilon naught, and the flux to the plane surface is minus of Q upon 2 epsilon naught. And what is the net flux to the hemisphere? That is 0. दोनों का add up करके आपका 0 आ जाएगा। So a beautiful question once again, and language was exactly based upon this idea that this is tending to 0. ठीक, सो इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का भी सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसी का कॉन्टिन्यूएशन का क्वेश्चन है कि अभी हमने क्या करा, इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट करा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर चार्ज को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। मींस ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, सो व्हाट वी आर डूइंग, इस चार्ज को हल्का सा यहां ले जाते हैं, और ये जो y है that is tending to 0, right? So that's the condition, that is charge is pushed slightly below the center of curvature. So the question is same, my friends. I need to find a flux through the plane surface and through the curved surface. Can you help me out? Plane surface and curved surface.
अच्छा, इसका कंपैरेटिव रेफरेंस जो है वो तो हमारा पुराना वाला ही है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ था पहले, दिस वाज द प्लेस, उसके रेफरेंस पर। राइट, प्लीज आंसर द फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस, इसमें तो 0 था and the curved surface was equal to q by 2 epsilon कैपिटल। अब क्या होगा? अच्छा, प्लेन सरफेस पे नेचर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव फ्लक्स का? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कर्व सरफेस पे नेगेटिव। पॉजिटिव ही होगा। कर्व सरफेस पे पॉजिटिव ही होगा ना? पॉजिटिव ही होगा, बाहर निकलेगा क्योंकि चार्ज अंदर है और पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस बाहर निकलेंगी। तो स्केच करते हैं, तो लाइंस बाहर निकालते हैं। तो चलो लाइंस बाहर निकालते हैं, यहाँ से लाइंस बाहर निकालते हैं। ओके, निकल गई। अच्छा, कर्व सरफेस से भी बाहर निकालते हैं, सर निकल गई। अच्छा, इसकी बताते हैं, इसकी तो इसका इमेजिनरी ऐसा बनाया था, फिर लाइंस निकाली ऐसे, और फिर इसकी भी निकाली लाइक दिस। अच्छा, आपको को समझ में आ रहा है? ये जो स्लाइड हल्का सा करा भी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड लाइंस कुछ खासा का चेंज हुआ नहीं है, वो आपका अभी भी सेम ही है। तो द फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल नॉट चेंजिंग, इट इज लाइक सेम ओनली। तो मतलब जितनी ऊपर लाइन जा रही है ना, उतनी नीचे जा रही है, समझ आ रही है? जितनी ऊपर जा रही है उतनी ही नीचे जा रही है, लेकिन इस बार प्लेन सरफेस से भी एग्जिट कर रही है और कर्व सरफेस से भी एग्जिट कर रही है, और जितनी ऊपर है उतनी नीचे है। मतलब ऊपर भी q by 2 एप्सिलॉन नॉट है और नीचे भी q by 2 एप्सिलॉन नॉट है, जो कि हमने यहां से पढ़ा था, और वही यहाँ पे रेफरेंस है। इसका मतलब द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस is plus q by 2 epsilon naught and the flux through the curved surface is plus q by 2 epsilon naught. And my dear, what is the flux through the hemisphere? अब पता है हम लोगों को ना आज के लेक्चर के बाद समझ में आ गया कि हेमिस्फीयर ना एक्चुअली क्लोज सरफेस होता है। दोबारा सुन लेना, नहीं तो ना अपने को पता है क्या लगता है कि एक स्फीयर क्लोज सरफेस होता है और उसका आधा काट दो तो हेमिस्फीयर ओपन सरफेस हो गया। समझ आ रही? अपने को ये लगता है, तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। इट इज अ कंप्लीट क्लोज सरफेस, क्योंकि वो दो चीजों से बना होता है, एक प्लेन सरफेस से और एक कर्व सरफेस से। तो अगर हमसे ये सारा तामझाम नहीं पूछा जाता और सीधा पूछा जाता व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, तो व्हाट वुड हैव बीन अ डायरेक्ट आंसर कि वो चार्ज उस क्लोज सरफेस में, मतलब अगर मैं हेमिस्फीयर बना रहा हूं ऐसे, तो ये कोई ओपन सरफेस नहीं है, ये बिल्कुल ओपन सरफेस नहीं है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। और फिर हमने क्या करा है, चार्ज को इसके अंदर कर दिया है। और लोकेशन ऑफ द चार्ज, एक्साइटिंग फीचर ऑफ द गॉस लॉ याद होगा, द लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डज नॉट अफेक्ट द फ्लक्स। और क्योंकि इस क्लोज सरफेस के अंदर है, so it should be equal to q enclosed by epsilon naught, and what you can see beautifully कि चार्ज इसके इनसाइड ही है, and therefore the flux is q upon epsilon naught। डायरेक्टली लिख सकते थे, वो अलग बात है, यहां से भी देख रहे हो तो ऐड अप करके आपका सेम आ रहा है, that is going to be q upon epsilon naught। Hopefully you have understood the beautifulness of these kind of questions। और यहीं पे हम आज का लेक्चर क्लोज डाउन करेंगे। ध्यान से कि जो हेमिस्फीयर होता है वो क्लोज सरफेस होता है और उसके दो पार्ट्स होते हैं, अ प्लेन सरफेस एंड अ कर्व्ड सरफेस। राइट, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। तो जैसे एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन रह गए हैं, एंड दैट इज द डेरिवेशन पार्ट ऑफ द गॉस लॉ, जो कि बोर्ड्स के लिए एसेंशियल है, और एक बिल्कुल एडवांस पार्ट ऑफ द गॉस लॉ जिसके अंदर हम वेरिएबल डेंसिटी के क्वेश्चन करते हैं। तो जो स्कूल लेवल डेरिवेशंस आएंगी दे विल बी बेस्ड अपॉन द यूनिफॉर्म डेंसिटी डेरिवेशंस, मतलब लैम्डा कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, और एडवांस लेवल उसका आता है कि लैम्डा, सिग्मा, रो वेरिएबल है। सो वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बच गए हैं, तो आप HCV से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। डेंसिटीज वाले क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं, मतलब जिसमें लैम्डा, सिग्मा, रो इन्वॉल्व हो कि वो गिवन और उससे फील्ड निकालनी है, ये वाले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करने हैं। उसको छोड़ के जो फ्लक्स रिलेटेड बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। HCV से थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस को भी सॉल्व ऑन कर सकते हैं। राइट, और बाकी मैं मॉड्यूल में से भी होमवर्क मार्कअप करके भेज सकता हूँ। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।
किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर कल वाले होमवर्क के अंदर थे डाउट्स कुछ, वो भेजे थे आपको।